I was ashamed of myself because of this course, and और sir ने वो class में पूरा announce, friends, batchmates or peers have not been supported in my content creation. They are always like कि what are you creating? ऐसा लगता है कि यार किस चीज़ पे मिस आउट कर दिया मैंने यार, काश मैं बनाता रहता. इट्स नॉट अबाउट नंबर्स, इट्स अबाउट हाउ मच आई हैव ग्रोन. तो वो एक चीज़ लगती है. सो बट या इट्स गुड मेमोरी जब आप देखते हो कि 2-3 साल पहले का कंटेंट है. 1st August 2023, I remember the date. First allocation CSAS portal 1 got out. Everyone who is even settled in their field also knows content has so much to give, and why must I not tap in it? आज का हमारा पॉडकास्ट इज विद अभिनव. अभिनव इज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट एट आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी. इस पॉडकास्ट में हमने ये कवर करा कि कैसे एक स्टूडेंट स्मॉल सिटी से आकर इवॉल्व करता है, ग्रो करता है और अपनी एक जगह बनाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में. अभिनव क्रिएट्स कंटेंट ऑन यूट्यूब एज वेल एज इंस्टाग्राम. अभिनव CUET के स्टूडेंट्स को मेंटोर करता है एंड ही इज अ UGC क्रिएटर एट इंस्टाग्राम टू. सो अगर यू आर समवन हु इज गोइंग टू राइट CUET, you are someone who is into content creation, or you are a college student who's still figuring out, ये podcast तुम्हारे लिए है. So, without getting any further ado, let's get into the podcast with Abhinav Conversify episode 12 in 3, 2, 1. Hi everyone, today we have with us Abhinav. First of all, hi Abhinav, thank you for coming on the podcast, thank you for agreeing. So, we'll start the podcast with having a little intro of you, who is Abhinav, what is he currently doing, and a little intro for those who don't know you, but yeah. Okay, so hi everyone. First of all, thank you so much for inviting me for the podcast. And I'm Abhinav Dubey. Currently, I'm in my 3rd year of college, pursuing BCom honors from Atma Ram Sanatan Dharm College, abbreviated as ARSD, University of Delhi, South Campus. And I'm from Bhattabara, Chhattisgarh. Talking about college life, apart from college, I am a part-time content creator on Instagram and YouTube. On Instagram, I make stuff about lifestyle content, like how a day of a DU student look likes. And on YouTube, it's basically the CUET mentorship videos, 12 guidance videos. And when I get time, I do a little vlogging and college reviews. So yeah, that's all about me and my content. Okay, so we'll start the podcast from your initial life, है ना, the school life, your hometown, and the shift, how school shifted to the college वाला part, वो जो एक portion होता है जहाँ पर फिर transition आता है. Okay. How was that phase for you, and how did ARSD happen, and all those stories? Okay, so a little backstory. Since I told I am from Chhattisgarh, so from nursery to 7th, I have studied in a state board school. And there was a transition when I shifted from CG board to CBSE 1 in my class 8th. So it was very difficult for me. Class 8 से 9th में 7th तक I studied in a state board, and 8th से CBSE. Okay. So curriculum was very different. Everything was very different for me. So it took time for me to cope up with the things. Then 10th was our COVID batch. So boards did not happen. Okay. So we were giving marks. The teachers were giving marks on the based on pre-board wal result. So I got 91.6%, and I was good at all the subjects. The theory part, I was very strong in it. I lagged in mathematics. So when there was a transition to choose between streams, I did not choose PCM because I always felt like maths is a burden for me. I did not choose PCB because physics felt not so good with me, but chemistry was good. But then I ended up choosing commerce, that too without maths. Okay. So basically the reaction of teachers were like, Abhinav, you are a good student. You should have chosen science. Why did you not choose it? And alongside my father was also expecting कि I will PCM या PCB because मेरी elder sister है वो भी commerce लेती. So he was like तू science ले. Okay. But thanks to my mom and sister who supported me कि like तेरे को जो लेना है तू ले. I took my time, like सबने पहले से चूज़ कर लिया था, मुझे काफ़ी टाइम लग रहा था चूज़ करने में. सो आई चूज़ कॉमर्स. अब मैंने विदाउट मैथ्स लिया क्योंकि आई टोल्ड यू द रीज़न, मैथ्स ऑलवेज फेल्ट लाइक अ बर्डन टू मी. सो IP लिया मैंने, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस. एक फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट था, सो आई चूज़ IP. सो 11th हैपेंड.
तो 11 में कॉमर्स आई स्टार्टेड लाइकिंग. अकाउंटेंसी अगेन फेल्ट लाइक अ बर्डन फॉर मी, बट somehow I managed everything and I was in the top 3 scorers in grade 11th. Now 12th happened. So 12th was a point like I was managing a lot of things because in 11th I was serving as the vice head boy of the school. So I was promoted to head boy post. So everything was happening because I was a student like he was into everything. Debating हो रहा है, Abhinav will be there. Events हो रहे हैं, Abhinav will be there. I was everywhere in every competition. Cool. So in the first pre-board, I got a reality check that in accountancy, out of 80, I got 36 marks in my accountancy. And that was the lowest score of my life. And I was ashamed of myself because of the scores. And और सर ने वो क्लास में पूरा अनाउंस किया. अरे तो it was not like सबके सामने बेइज्जती हुई है, बट यार मेरे स्कोर आज तक के सबसे कम आए हैं और वो मुझे ही नहीं, अभी सबको पता चल गया है. तो वो बहुत ज़्यादा सेटबैक हो गया था मेरे लिए. तो मैंने उसको लाइक उस रिग्रेट को आई कन्वर्टेड इनटू कि लाइक इसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है. देन मैंने सारे सब्जेक्ट्स छोड़ दिया, मैं सिर्फ अकाउंटेंसी पढ़ने लगा. देन इवेंट्स हो रहे हैं तो मेरे को हेड बॉय हूँ तो हर चीज़ में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहना था. तो मेरा अकेडमिक्स काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होते थे, बट समहाउ टीचर्स न्यू कि ठीक है मैनेज हो जाएगा. मुझे भी लग रहा था मैनेज हो जाएगा. नाउ 12th हैपेंड कि 12th के बोर्ड्स एग्ज़ाम हो रहे हैं. सारे एग्ज़ाम अच्छे गए, अकाउंटेंसी बहुत अच्छा गया. एंड आई वाज लाइक अकाउंटेंसी का पेपर ख़त्म हुआ है. आई टोल्ड कि मेरे 98 मार्क्स आउट ऑफ 100 आएंगे. मैं सब में अच्छे से एक्सपेक्टेशंस लगा के गया था कि इसमें इतने मार्क्स आएंगे. 31st March 2023, लास्ट डे ऑफ आवर बोर्ड एग्जामिनेशन, अकाउंटेंसी का पेपर था. आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी क्योंकि बहुत अच्छा गया था मेरा पेपर. उसके बाद रिजल्ट्स आते 1 महीने बाद. एंड the most tragic or irony in this situation was I scored the highest in my accountancy. That was 98 out of 100. And I was like, wow, मतलब ठीक है. Even the teacher, our accountancy teacher did not expect कि भाई इतना आ जाएगा इसका. आज जब स्कूल से कॉल आते हैं कि लाइक इसका तो मेरे आई थिंक मार्क्स भी चेक नहीं किए कि देयर वाज अ लिस्ट ऑफ टॉपर्स कि इन्हीं में से तो कोई होगा, तो उनके चेक कर लिए, मेरे किए भी नहीं. एंड मैंने ही टीचर्स को अपना स्क्रीनशॉट भेजा रिजल्ट का, सो दे गॉट टू नो कि ओके ही इज़ द टॉपर, ही इज़ द सब्जेक्ट टॉपर. सो दैट थिंग हैपेंड. ओवरऑल परसेंटेज वाज 94.6. देन CUET. हाँ, CUET का रजिस्ट्रेशन वाज लाइक कि जब हमारे बोर्ड एग्जाम चल रहा है उसके बीच में रजिस्ट्रेशन था. सो I think it was the first time जब CUET आया था. इट वाज द सेकंड टाइम. या कूल. फर्स्ट बैच हमारे सीनियर्स. Okay. तो CUET के टाइम व्हाट हैपेंड वाज कि एग्जाम्स के बीच में रजिस्ट्रेशन हो रहा है. तो आई लाइक मेरा ड्रीम कभी नहीं था कि DU जाना है. आई न्यू DU, व्हाट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी. इन 11th grade there again that was our accountancy teacher. He was like Shri Ram College of Commerce. 99.99 percentile you need for that. And I was like यार कहाँ ही आएगा 99.99 percentile. ठीक है यार नहीं जाना. तो there was a state university in Chhattisgarh. That is the only central university. गुरु घासीदास GGU. ठीक है. तो आई वॉज लाइक कि 12th में ओके मेरे को इसमें जाना है, मेरे को घर भी नहीं छोड़ना है बिकॉज आई वॉज लाइक अ वेरी मामा बॉय किड, लाइक मम्मी पापा को छोड़ के कभी नहीं जाना है मुझे. तो मैंने यही सोचा था. फर्स्ट प्लान वॉज कि गेट इनटू GGU और सेकंड प्लान डू CA एंड गेट अ लोकल कॉलेज, स्टडी एट होम, बेस्ट लाइफ. So I failed for GGU only. But then again there was a friend of mine. I have experienced many things from my friends. So he was like he failed for Delhi University and Banaras Hindu University and I just failed for GGU. So he motivated me कि भाई देख only GGU मत भर, have an option of DU and BHU. The best option you will get it. The worst you will not get it. So the last date of registration था वो जो विंडो होता है ना लाइक क्लोजिंग विंडो टाइप. हाँ CASAS पोर्टल. तो लास्ट डे की विंडो पे आई फेल्ड फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड BHU. ओके आई वॉज हैप्पी कि चलो भर गया. अब 31st मार्च को लास्ट बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ. अप्रैल का मंथ था. जून में वी वर हैविंग आवर एग्जाम्स. तो मैं अप्रैल में नानी घर चला गया कि लाइक ठीक है. आई डिड नॉट स्टडी मच फॉर CUET एंड आई थिंक दैट इज़ अ मिस्टेक फ्रॉम माई एंड. बट आई वॉज लाइक आई एम श्योर कि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आई विल नॉट हैव टू स्टडी मच. तो अप्रैल का महीना पूरा चल गया. You wrote CUET without that much preparation. Yeah. Boards का वो जो preparation था. So it was around 21st जून को पेपर था. तो मैंने स्टार्ट किया 15 जून से प्रिपरेशन स्टार्ट किया. एंड आई वॉज मोस्टली प्रिपेयरिंग फॉर GT जनरल टेस्ट. ठीक है. क्योंकि GGU के लिए वो चाहिए था. Okay. तो रात दिन मैं GT पढ़ रहा हूँ क्योंकि वो नया सब्जेक्ट भी था. And DU में शायद BCom आर्ट्स के लिए GT is not important. या ना दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट. मेरा DU था ही नहीं कि ठीक है यार मैंने बस भर दिया था फन में. Okay. तो मैं जनरल टेस्ट रात दिन पढ़ रहा हूँ. अब फर्स्ट स्लॉट वाज इंग्लिश एंड GT.
बट इंग्लिश भी मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि इंग्लिश लाइक आई फील कि ठीक है मेरा इंग्लिश आई विल गेट इट. सो जनरल टेस्ट हैपेंड, वो फर्स्ट अच्छा गया. एंड अगेन अ ट्रैजिक थिंग, CUET का जब फर्स्ट पेपर था, फर्स्ट स्लॉट में पेपर था सुबह 9 बजे से 12 बजे वाला 21st को, वही मेरे को मिला था. तो आई वॉज लाइक वाई एम आई द ओनली वन. मेरा रोल नंबर हमेशा फर्स्ट पे है नर्सरी से अभिनव. लाइक देर आर पीपल AA, आदित्य में AA यूज़ होना चाहिए बट दे डोंट यूज़. आई डोंट नो वाई दे यूज़ सिंगल A. तो स्टार्टिंग से मेरा रोल नंबर बन रहा है, वाइवा हो रहा है, 1 हुआ है. तो आई वॉज लाइक कि वाई मी अगेन CUET है फॉर द फर्स्ट टाइम एवर वी आर गिविंग, मतलब मैं तो दे रहा हूँ, मैं ही क्यों. तो आई वॉज लाइक ठीक है, बट वेंट गुड. Then again after a gap of 5 days I had 3 subjects a combination, economics, BST and accountancy. तो वो तीनों दिलाया. एंड what happened was कि वो तीनों पेपर का एक साथ हुआ और दोनों मेरे सेंटर बिलासपुर में पड़े थे. ठीक है. So it is a 1 hour distance from my hometown. So मेरे पापा मेरे को सेंटर तक छोड़ने गए थे. So I was like कि पापा बहुत अच्छा गया है, I feel like DUBHU मिल जाएगा, GGU छोड़ दो अब आप. तो उसके बाद प्रेफरेंस शीट वाली चीज़ हैपेंड. 2 of my seniors helped me very much. One is from DRC and another one is from SDTB Khalsa. So preference sheet, the thing happened कि I registered myself for the CUET वाला thing and the preference sheet भरने का time आया. So I was very confused between colleges, कौन सा ऊपर है क्योंकि we इसको लेके क्लियर था BCom ऑनर्स ही. या courses को लेके it was very clear, BCom honors और BCom program. ठीक है. Eco honors I could not fill because I was a non-math student. ठीक है. So yeah. So जब प्रेफरेंसेस बनाने की बारी आई, आई सर्च फॉर सुनील पांडा वॉज द क्रिएटर, लाइक सर राजत अरोड़ा सर की वीडियोस देखी तो उसमें बहुत कम उस टाइम गाइडेंस वीडियोस थी. उज्ज्वल शर्मा वॉज अ गाय फ्रॉम SRCC, ही वॉज ऑल्सो टेलिंग सम प्रेफरेंस शीट एंड ऑल. सो मैंने सबकी प्रेफरेंस शीट कंबाइन करके एक प्रेफरेंस शीट बनाई. दैट वॉज बेसिकली वही नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस. ना मैंने ये दोनों सीनियर को बताया कि ये शीट है. तो ऑन द लास्ट डे इटसेल्फ, वो रात के मैंने 11 बजे से चेंज करना स्टार्ट किया, 12 बजे वो था डेडलाइन. एंड ट्रैजिक थिंग वाज कि ARSD को ही मैं बहुत ज़्यादा स्विच कर रहा था क्योंकि ARSD की NIRF अच्छी थी एंड ARSD के बारे में मुझे पता था कि इज़ अ गुड ग्रोइंग कॉलेज. तो मैं उसको बहुत ज़्यादा शफल कर रहा था. KMC, रामजस, ये वाले में शफल कर रहा था. आई सबमिटेड द प्रेफरेंस शीट. इट वॉज लाइक वेरी नॉर्मल प्रेफरेंस शीट, नॉर्थ कैंपस की कॉलेज, फिर साउथ कैंपस की कॉलेज, ऑफ कैंपस की कॉलेज. आई फेल्ड 72 प्रेफरेंसेस इंक्लूडिंग BCom honors and BCom program. Now it was 1st August 2023, I remember the date. First allocation CSAS portal 1 got out. I got ARSD DU and I was shocked कि यार इतना अच्छा कॉलेज मिल गया. और ARSD was a college, वही मैंने बताया कि उसको मैं बहुत इंपॉर्टेंस दे रही थी, ऊपर रखूँ नीचे रखूँ. तो आई वॉज अ बिट शॉक क्योंकि फ्रीज और अपग्रेड वाली चीज़ हो जाती है उस टाइम पे. तो घर पे पापा बस थे, मम्मी दीदी आर वर्किंग, तो वो नहीं थे. तो पापा वाज लाइक वेरी हैप्पी, मिल गया. अब बैक ऑफ द माइंड घर पे दीदी मम्मी भी पहुंचे एंड आई वाज लाइक कि यार मन नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे घर पे छोड़, आप लोग को छोड़ के नहीं जाना है मुझे. यू वर लाइक दिस कि घर छोड़ के नहीं जाना. आई एम मतलब वेरी अटैच टू माई फैमिली एंड पेरेंट्स. तो आई वाज लाइक मैं नहीं जा रहा. बट अगेन माई पेरेंट्स मोटिवेटेड मी कि पापा वाज लाइक सी तू चला जा, यू ऑलवेज हैव द ऑप्शन टू कम बैक, बट इफ यू डोंट यूटिलाइज दिस ऑप्शन तेरे पास ऑप्शन ही रहेगा, तो तू चला जा. कूल. मम्मी वॉज वेरी इमोशनल एट दैट टाइम कि देख ले तू, देखो जो सही लगे. And my sister was again very supportive because she did not enjoy her college life. She was admitted into the local college, so she was like, you don't do it for you. I did not enjoy my college life. I want you to enjoy your college life. So go to Delhi University. We booked our tickets एक हफ्ते में and freeze upgrade का भी चीज़ था. I freezes ARSD. Okay. So I don't know, that was a mistake from my end. At that particular point of time, it felt for months कि it was a mistake from my end. But then today, when I stand here, I don't feel that was a mistake. ARSD was the best thing that has happened to me. Why people were saying you could have upgrade? I had a ECA quota, extracurricular activity. Okay. I had national certificates into debating, into dance, everything. Creative writing. These 3 were the fields I filled for. But I just freezed ARSD, so there was no criteria that I could sit into ECA. Cool. So when I came to ARSD, people were like, you could have filled for ECA, you must have been sitting into SRC Hindu Hansraj. So those things demotivated me, मैंने गलत decision ले लिया. But now I am someone who believes कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. So I feel कि moved on with ARSD was the good thing. Cool. So I reached Delhi on 15th August 2023, Independence Day. First time ever I was visiting Delhi for the first time. My parents also came for the first time. पापा आए थे बस छोड़ने. 16th August को it was orientation day. So
yeah, this was the thing ARSD happened to me. Yeah. So it's a very good story. Yeah. है ना? Coming from that accounts नहीं हो रहा है इससे सीधे accounts में बचा दिया and then ARSD. Okay, cool. How is life at ARSD? Like, we know this North Campus and South Campus, but apart from that pivot, कि how is college life at ARSD? कैसा है the overall experience? How's the teachers? How's crowd there? कैसा experience? Okay, so decent. I'd rate out of 10. I'll rate ARSD 8 or 8.5 because there should always be a space for suggestions and feedback. Why 8 or 8.5? Because of one is a point infrastructure. If I talk about infrastructure, there is no hostel. When I first came to Delhi, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है एक नॉन स्टूडेंट को, नॉन रेजिडेंट को पीजी फाइंड करने में, और वो सिचुएशन मैंने बहुत ज़्यादा फेस की थी. सत्यनिकेतन के पीजी, सत्यनिकेतन इज़ अ रेजिडेंशियल एरिया नियर द साउथ कैंपस. दैट वाज वेरी कॉस्टली, लाइक 15,000 20,000 फॉर वन बेड. एंड आई वाज लाइक कि इतनी ये स्पेस दे, माचिस का डिब्बा जैसा होता है, उसमें भी शेयरिंग करना आपको सब चीज़. वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी कि कैसे ढूंढे. बट समहाउ मेरे को पीजी कैसा मिला था, आई वॉज इन टू ग्रुप्स कि व्हाट्सएप ग्रुप से पहले से ज्वाइन हो गए थे, तो उसमें बहुत फ़ोटोज़ वगैरह आती थी. तो आई फाउंड रूम देयर, उनसे बात करके आई बुकड अ पीजी. एंड द बेस्ट थिंग वाज पीपल गिव 20,000 रेंट, 20,000 सिक्योरिटी, 10,000 ब्रोकरेज. अरे बहुत होता है. 50,000 आपका एक बार में चला जाता है. और आपके पेरेंट्स उतना प्रिपेयर करके नहीं आते हैं कि दे आर लाइक कि ठीक है 20-30 में हो जाना चाहिए, बट वो 50-60 पहुँच जाता है ईजिली. बट वेरी ग्रेटफुल, ना मुझे सिक्योरिटी देनी पड़ी, ना मुझे ब्रोकरेज देनी पड़ी. आई डोंट नो हाउ डिड आई फाउंड दैट रूम, बट वहाँ पे ना सिक्योरिटी ना ब्रोकरेज थी. देयर वाज वेंकी के एक सीनियर ऑलरेडी लिविंग देयर, सो यू लाइक वी हैव ऑलरेडी पेड, यू डोंट हैव टू पे. वेरी ग्रेटफुल, आई गॉट गुड पीपल देयर. नाउ टॉकिंग अबाउट द ARSD कैंपस लाइफ, इट्स गुड बिकॉज ऑफ द सोसाइटीज़. ठीक है. The crowd is not that much good, ठीक है, as compared to other colleges. The crowd is decent, but the societies of ARSD make it very good. And talking about people, it's more of South Delhi crowd. North campus में you will find many students outstation. South campus में भी you will find, but majority is the Delhi resident, so you'll find the South Delhi crowd. Faculty, talking about faculty, I am from BCom honors. Commerce की faculty is very good. The subject which we are studying, उनके publications जो होते हैं, जो teachers होते हैं, वो ही हमको पढ़ाते हैं. Like advertising की एक teacher है, वो हमको वही पढ़ाती है. So it's like faculty is good. Faculty I'll rate 10 out of 10. Infrastructure, auditorium नहीं है हमारे college में. अरे Like it's under construction. It's built, but due to some issues, I don't know, political issues or some sort of issues, it's built, but it's not opened yet. And what more? Attendance ka issue, there is little less. Like we just have to submit a forma that we were not available for this reason, but this time they are saying it's very difficult. So I'm into cultural. Like I go to college every single day, but I do not attend classes. हाँ तो वो cultural उसका. So teachers know कि okay, this guy is involved in cultural activities. ठीक है. Okay. You talked about college societies. Are you part of some college societies? Okay. From first year, you would have been. Yeah. How college societies helped you shape your personality and overall in your career till now? College societies ने कितनी मदद करी? Okay. कितने relevant रहे वो तुम्हारे लिए? So don't judge me on this. I was a part of 12 societies in my first year of college. अरे इतनी होती है college में भाई. In my third year of college, I am a part of क्यों छोड़ी? 2-3 भी क्यों छोड़ी? societies. But नहीं, it's good. Unable to manage. Okay. So right now I'm serving as the treasurer of Paritantrika, that is the Eco Club, and public relations head of Cultural Society, which is a dance society, Kalashri. Along with it, right now I'm a member at Artisania, Fine Arts, Comtalks, Commerce Seminar Society, Commerce Association, and Hindi Debating Society. So these are some of sort of societies. Okay. How have they shaped me as an individual? Hardly. My college life would have been zero if I did not join any society. My college life is because of societies. My people, my juniors, my seniors are because of the college societies. My first motive was to join as many societies as I can, because school maybe I was a part in ECA, so I decided कि college में भी ECA तो करना है.
So I gave auditions of almost each and every society. Like there must be many societies. I gave auditions for 15 societies. I got rejected in some. Singing society का भी दिया था मैंने, मुझे गाना नहीं आता, but still. So I got into 12 societies including dramatics and everything. तो ऐसा नहीं हुआ societies में, like this happens in our college too and maybe in the other colleges, when you are participant of a lot of societies, तो वो complain करती हैं कि भाई हमें active members चाहिए, अगर आप हमें अच्छे से deliver नहीं कर सकते कोई इशू नहीं है आप, Yeah. ये नहीं हुआ? So during the interview they did ask, but I was like, okay, I just given the interviews of 2 societies. Like I really wanted to get into societies. तो इसलिए मैं बोल रहा था कि बस मैंने 2 का दिया है, बाकी मैं आपकी सोसाइटी में कमिट कर दूंगा. बट हाँ, ऐसा हुआ विद टाइम. I was unable to manage. So आप सेकेंड ईयर आते आते वो चीज़ें तो होने लगी. I had to leave. Like dramatic society में मुझे नहीं लगा कि dramatics is made for me. I left within a week. No worries. In my second year of college, I realized कि भाई there are many extra societies which are not doing anything or which are not of my interest. So I left many societies and जो मेरे को interest की societies उन्हीं में रहा. Dance is a hobby for me. मतलब मैं उसमें कितना भी time invest कर दूँ, मुझे कभी time consideration वाली चीज़ नहीं feel होगी. तो I was into this society. Also I joined some societies in my second year again कि re-auditions हो रहे हैं because I feel कि ठीक है, I may get a POR in this society because I feel this society is for me क्योंकि auditions छूट जाते हैं. So yeah, the culture, the communication skills I would say. Like ऐसा नहीं है कि मैं बहुत introvert personality था, कॉलेज जाके बहुत extrovert हो गया. I was extrovert, but communication skills आपकी improve होगी जब आप societies में, आपकी networking बनेगी. आप यू विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट विद योर सीनियर्स अंटिल यू आर इन सोसाइटी. आप अपने बैचमेट्स के अंदर ही रहोगे. अगर आप सोसाइटीज़ ज्वाइन करते हो, यू नो अबाउट योर बैचमेट्स. लाइक आई एम स्टिल इन कॉन्टैक्ट विद माई बैचमेट्स एंड आई डू आस्क फॉर दिस स्टूडेंट्स टुडे कि भैया दीदी ये कंपनी की प्लेसमेंट आ रही है, कैसी है, आपके एक्सपीरियंस से, ये सोसाइटी ये हो रहा है, हमारी सोसाइटी में ये इशू आ रहा है, मैं प्योर है, लाइक भैया फंड मैनेज नहीं हो रहा है, आप कैसे करते थे. So everything, a senior can help you in many ways and a junior can teach you in many ways. So the relationship between junior, senior, batchmate, everything can happen into a society, nowhere else I feel. Okay, that way. ठीक है, this is about the content thing. Let's little bit talk about कि ये जो पूरा टसल रहता है North Campus, South Campus. What's your point of view and मतलब what's your take on this? Okay. हाँ. So 16 को हमारा ओरिएंटेशन था ARSD का. और 18th को सुनील पांडा सर एंड रजत अरोड़ा सर वर कमिंग टू SRCC एंड आई वाज लाइक SRCC हैज़ बीन माय ड्रीम कॉलेज, तो वहाँ तो जाना बनता ही है. तो आई एंटर्ड SRCC. नाउ अब मैं उस टाइम लगता है कि यार नॉर्थ कैंपस वाली लाइफ है, साउथ कैंपस वाली लाइफ है, देयर इज़ अ डिफरेंस आई कैन डिफरेंशिएट. बट राइट नाउ इन माई थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज देयर इज़ नो डिफरेंशिएशन. इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल. सो एट फर्स्ट अगर मैं क्राउड की बात करूँ इन टर्म्स ऑफ द रेजिडेंशियल एरिया ऑफ स्टूडेंट्स, या मैं बेसिकली क्राउड की बात करूँ तो नॉर्थ कैंपस हैज़ अ एज बिकॉज व्हाट हैपन्स इन नॉर्थ कैंपस बेसिकली वहाँ पे सारे कॉलेजेस कनेक्टेड है. SRCC, हिंदू, हंसराज, किरोड़ीमल, रामजस, DRC, मिरांडा, ये SGTB पूरे लगे हुए हैं. तो इट्स बंच ऑफ 7 to 8 कॉलेजेस लगातार. साउथ कैंपस में बेसिकली स्कैटर्ड है कॉलेज. 3 कॉलेज लगे हैं, मोतीलाल, रामलाल, आर्यभट्टा, फिर वेंकी RSD लगे हैं, फिर JMC मैत्री लगे हैं, फिर LSR अलग है, CVS और SBSC अलग है. हाँ. अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो अगर आप साउथ कैंपस में रह रहे हो तो आपके पास आर्यभट्ट, मोतीलाल, रामलाल, ARSD, वेंकी, दैट्स ऑल. 5 कॉलेज का एक्सेस है आपके पास, क्योंकि जो सत्यनिकेतन है वो उतना ही एक्सेस दे पाएगा. और नॉर्थ कैंपस में आपके पास 7-8 कॉलेज है. और द थिंग इज़ ये सारे टॉप कॉलेज नहीं है हमारे साउथ कैंपस के. वेंकी टॉप है, ARSD अभी भी मिड है, लाइक NIRF बहुत अच्छी है उसकी, बट अभी भी मिड कॉलेज में आएगा. और रामलाल, मोतीलाल तो नहीं आते अभी. और आप अगर नॉर्थ कैंपस में रहोगे आप पूरे टॉप नॉच बच्चों के बीच में हो. अब टॉप नॉच बच्चों के बीच ये होता है, अगर आपका रूममेट है या बिल्डिंग मेट है, PG मेट है, वो आपका टॉप कॉलेज से होगा, तो ही कैन हेल्प यू एंटर इनटू हिज कॉलेज, मेक फ्रेंड्स ऑफ हिज ओन, क्योंकि दोस्तों से दोस्तों बहुत बनता है कॉलेज में. ठीक है. तो नॉर्थ कैंपस पीपल हैव एन एज इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट. इफ आई टॉक अबाउट Big 4 offer the same package, South Campus or North Campus. ठीक है. But other companies like there is one of my friend in LSR doing BCom honors. She said उसके कॉलेज में मीशो आई है, Amazon आई है. And I was like हमारे में कुछ नहीं आया. हंसराज में आए, नमो इंडिया आई है. They are giving 14-15 LPA. हमारे में कुछ नहीं आया. So that is the thing, क्योंकि कंपनी आएगी तो उस कॉलेज में जाएगी जहाँ से उसको ज़्यादा बच्चे मिल जाए. That is the advantage कि South Campus काफ़ी scattered है, North Campus काफ़ी अच्छे से well maintained structured है. Cool. This is about the North Campus and the South Campus thing.
now let's come to some good issues. ठीक है. You create content. How did content creation started? कैसा चल रहा है? Okay. So talking about YouTube first, I posted my first video when I was in class 10th, and I was like, बस मुझे पोस्ट करना है कैसा भी हो वीडियो. So the video was reacting live to my CBSE class 10th result. उसमें अगर मैं आज जाके देखूँ, मैंने आज भी डिलीट नहीं किया बिकॉज आई वॉन्ट पीपल टू सी कि हाउ मच आई हैव ग्रोड. लोग होते कि गंदा वीडियो है आप डिलीट कर देते हैं, बट खुद भी देख के अच्छा लगता है. हाँ, शक्ल देख के तो अच्छा नहीं लगता है और कॉन्फिडेंस देख के अच्छा लगता है. यार मैं तो अच्छा बोल लेता था पहले. कैमरा एंगल्स बहुत गंदे होते हैं ऑब्वियसली. दिस हैपेंस विद मी टू. अभी मैं बहुत टाइम बाद कंटेंट में वापस आया हूँ एंड आई सी माई पुराना कंटेंट. भाई इतना ऐसा लगता है कि यार किस चीज़ पर मिस आउट कर दिया मैंने. काश मैं बनाता रहता. इट्स नॉट अबाउट नंबर्स, इट्स अबाउट हाउ मच आई हैव ग्रोन. तो वो एक चीज़ लगती है. सो बट या इट्स गुड मेमोरी जब आप देखते हो कि 2-3 साल पहले का कंटेंट है. हाँ. देन हैपेंड क्लास 12, 10th के बाद सीधा 12th में अपलोड किया. सो 12th में मैंने अपने फेयरवेल का ब्लॉग बना दिया एंड इट वॉज लाइक अब ब्लॉग बनाया तो टीचर्स भी देख लिए, बच्चे भी देख लिए. एंड हमारे स्कूल के डायरेक्टर सर वॉज देयर, ही कमेंटेड ऑन दैट वीडियो. आई वॉज लाइक वो बंद करा देंगे मेरा चैनल, बट ही अप्रिशिएटेड कि लाइक अभिनव यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. तो मुझे और कॉन्फिडेंस आ गया कि ओके आई कैन पोस्ट कॉन्टेंट. उन्होंने डिलीट नहीं कराया भाई, लाइक नो वन हैव शूटेड. अब 12th के बाद आई गॉट इन टू कॉलेज. हाँ, 12th का one video got viral in 48 hours. That was reacting live to my CBSE class 12th result. And that hit around 48K views in 48 hours. So उसमें बहुत ज़्यादा engagement आ गई और motivation मिला. अब जब I came to Delhi, a lot of things were happening. So I was not able to shoot content की every single day. और मोबाइल भी ही नहीं हो पाता यार. 128, 64 GB कितना ही आपको दे पाएगा. हाँ, तो I shifted to Instagram. Instagram में I had my private ID. क्लास 11-12 से उसी को मैंने पब्लिक कर दिया जैसे ही मैं कॉलेज में आया. फर्स्ट ईयर मैंने सेकेंड ईयर में किया मैंने बिकॉज आई वांटेड टू परस्यू कंटेंट क्रिएशन वेरी सीरियसली. अब इंस्टाग्राम पे आई स्टार्टेड पोस्टिंग अबाउट लाइफस्टाइल कंटेंट कि एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का बच्चा कैसे इंजॉय कर रहा है, क्या कर रहा है, इलेक्शन सीन्स चल रहे हैं, मैं उसको रिकॉर्ड करके डाल दे रहा हूँ. अब उसमें से सामने से DU वगैरह के पेजेस है, उनका आ जाता है कैन वी कोलैब कर लिया और व्यूज़ आ गए. तो आई वॉज लाइक ठीक है, इससे व्यूज़ भी आ सकते हैं. अब इंस्टाग्राम तो पे नहीं करता है, ब्रांड कोलैब होता है. तो ब्रांड कोलैब्स कैसे करते हैं? दे बेस्ड ऑन योर व्यूज़, बेस्ड ऑन योर फॉलोअर्स. तो आई हिट 1K फॉलोअर्स. आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू कैंपेन्स. ब्रांड कोलैब्स आ गई, थोड़े पैसे आने लगे. तो आई वॉज लाइक ठीक है, कॉन्टेंट से पैसे आ रहे हैं. ऐसा नहीं था कि लाइक मैं अपनी कॉलेज की फ़ीस खुद भर रहा हूँ. स्टार्टिंग से एम रहा है कि आई बीन फॉलोइंग अमन धत्रवाल एंड ही हैज़ क्लासिक लाइक 8th क्लास से मैंने सुना है कि अपनी कॉलेज की फ़ीस स्वयं भरो. तो लाइक ठीक है भरना है, बट बहुत मेन थिंग DU की फ़ीस बहुत कम है. लाइक आप पे 20,000 20 लाइक हो गई मेरी पढ़ाई. बीटेक कॉलेज. हाँ, तो फीस काफ़ी कम है. बट हाँ, मैंने नहीं भरी अब तक अपनी खुद की कॉलेज. बट हाँ, देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस कि आप घर वालों को बोल सकते हो कि ठीक है आप 15,000 भेजते थे, अब आप 10,000 भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है. ऐसा हो जाता था. तो आई स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन इंस्टाग्राम से. यूट्यूब पे अगेन CUET की नेक्स्ट बैच आ गई. तो आई स्टार्टेड अपलोडिंग कंटेंट ऑन 12th का गाइडेंस वीडियोस. आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट फ्लेक्स नहीं है, बट आई वाज द डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्कूल टॉपर इन माय होम टाउन. सो बेसिकली स्कूल के बच्चे तो वहाँ से देख ही लेते थे, मेरे उस क्राउड के बच्चे. आई रीच्ड फ्रॉम यूट्यूब थोड़ा और ऑडियंस है. CUET का मैंने मेंटरशिप देना चालू कर दिया. CUET जब फर्स्ट बैच आई, यानी कि जब आई गॉट इनटू सेकेंड ईयर, फर्स्ट बैच आई, तो आई स्टार्टेड रिसीविंग कमेंट्स कि भैया आई गॉट इनटू DU बिकॉज ऑफ यू. और वो चीज़ बहुत बड़ी चीज़ होती है. लाइक आपके व्यूज़ ना आए, सब्सक्राइबर्स ना बढ़े. हाँ, वो चीज़ बहुत जेन्युइन होती है व्हेन यू गेट दैट टोकन ऑफ एप्रिसिएशन. मैं बोलूँगा कि जब वो बोलता है कि नहीं दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ यू, अच्छा लगता है. वो एक बच्चा भी आके बोल दे तो लाइक आपकी मेहनत सफल हो गई. सो दिस हैपेंड कि CUET मेंटरशिप वीडियोस चालू कर दिए. फिर मैंने बीच में 6 मंथ्स आके अपना लाइफ अपडेट देना चालू कर दिया कि ये 6 मंथ में मैंने ये किया वो किया ऑन यूट्यूब. फिर टाइम मिला तो आई स्टार्टेड व्लॉगिंग. सो ऑल द थिंग्स हैपेंड वेरी रैंडमली. ऐसा कुछ मैंने कभी प्लान नहीं किया कि मेरे को ऐसे सॉर्ट ऑफ कंटेंट बनाना है. बिकॉज ऑन इंस्टाग्राम यूट्यूब मेरी कोई नीश नहीं है. मैं व्लॉग भी डाल देता हूँ, मैं कभी गाइड भी कर देता हूँ, कभी पढ़ा भी, कभी कुछ भी हो जाता है. हाँ, तो पीपल हैव टोल्ड मी कि फाइंड अ नीश
बट आई फील अगर मैं नीश फाइंड करने गया, But you are, that's how I view. You are a little sort of a UGC creator more. yeah you can say that. So nothing was planned, सब चीज़ होता गया और होता गया, रिजल्ट दिखता गया, तो आई कंटिन्यूड मेकिंग इट. आई होप कि आगे भी मैं कंटेंट क्रिएशन परस्यू करूँ इन बोथ द. We were talking this थोड़ी देर पहले कि क्या कहते हैं, how's your friends supportive into this और तो कैसा POV मतलब, क्योंकि and this is something which almost everyone faces in initial journey and I think क्योंकि तुम्हें भी time हो गया है बनाते बनाते. अब जैसे when I started creating, I almost received appreciation from everywhere, even from the unknowns, even from my friends. Friends were like, very good, we knew you will do this. So they were like that. फिर when I stopped making content, my friends were the first one who used to criticize कि क्या कर रहे हो भाई. Nice. Between this 1 year when I was not creating, my friends were the one who were मुझसे नाराज मेरे से क्योंकि मैं कंटेंट नहीं बना रहा. ठीक है. एंड बाकी एरिया से भी सपोर्ट रहता है. सो दिस वाज माय साइड ऑफ स्टोरी एंड आई नो दिस हैपेंस विद अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स कि भाई फ्रेंड्स वाला साइड हमेशा थोड़ा डिमीनिंग सा रहता है. व्हाट इज योर पर्सनल इक्वेशन इनटू दैट? Okay, so my friends, batchmates or peers have not been supported in my content creation. They are always like, what are you creating? Why do you make vlogs? Do something serious in life. Prepare for CAT. Do CA. Do internships. Do stuff. Don't make all of this. This is a shit and you will not get anything out of it after 5 years. You will regret it. So these were the reviews I received. But my seniors supported and my juniors supported. So I have a very good bonding with my seniors as well as my juniors. So does it affect you anyway? मतलब do you, मतलब obviously यार एक चीज़ होती है कि they are saying something. I can ignore. It can hurt me. ठीक है, दोनों चीज़ों को 2 मिनट साइड में रखता हूँ. But वो critically कहीं ना कहीं तो तुम भी calculate करते होगे ना. So how is your equation with that thing? Not the response they gave, but the feedback which you are receiving या फिर जो भी बात तुम्हें मिल रही है उसके साथ तुम्हारी कैलकुलेशन कैसी रहती है? ओके दिस इज, वो लोग मेरी ये वाली सिचुएशन शायद नहीं समझ रहे हैं. सो दे आर, हाउ डू यू डील विद दिस? Okay. So for a 1 or a 2 day, I might feel like okay, they were correct. Not correct, but they are my friends. They are thinking about my benefit. Why will they say me these things? But ये 1 या 2 दिन के लिए रहता है. उसके बाद like I believe in, यहाँ से सुनो, वहाँ से निकाल दो, उतना मत सोचो. बिकॉज आप जितना सोचोगे आप उतना ज़्यादा आपका प्रोग्रेस स्लो हो जाएगा. आप उसमें ओवर थिंकिंग में चले जाओगे. तो एक उस रात तक मैं शायद डीप टॉक में चला जाता हूँ कि ओके ये हो सकता है, वो हो सकता है. बट एज सुन एज द न्यू डे स्टार्ट्स, आई फील लाइक दिस इज़ नथिंग. व्हाट आई वांट टू डू अल्टीमेटली आई हैव टू डू दैट. सो व्हाट हैपेंस बेसिकली कि अगर मैं कोई स्पीकर सेशन में जा रहा हूँ, ठीक है, एंड दे आर इनटू एडटेक और एजुकेशन, आई आस्क दिस क्वेश्चन, वेरी सिंगल क्वेश्चन ईच एंड एवरी सेमिनार कि आई एम इनटू कंटेंट क्रिएशन, आई एम मेकिंग कंटेंट, आई एम प्रेजेंट on social media, but my friends are not, and they're like, you are doing for fun or it's just a time waste. So every time every single speaker comes, he told me, not today, not tomorrow, but after 5 years you will realize कि आगे का ज़माना is all about social media. आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस होनी ही चाहिए, either on one platform, Instagram, YouTube, LinkedIn. अब तो Pinterest में भी बहुत लोग ग्रो कर रहे हैं. तो ये these are the fields. तो always मेरा ये था कि ठीक है, I am making connections through it. I'm making networks through it. You are not doing it. That is not my fault. If I am creating content, I know the benefits, I know the pros, I know the cons. You can just suggest me. It's always up to me कि whether to listen to you or not. So it's always like कि सुना है मैंने, but मैंने कभी उतना ध्यान नहीं दिया है. और I have always looked to the more good people who can inspire me. Cool. आई रियली थिंक अबाउट दिस कंटेंट वाली चीज़ की. एक चीज़ जो मुझे लगती है, जो मैंने भी बीच में, दिस होल 1 year वॉज एक्चुअली एग्जैक्टली ऑफ दिस कि मेरा ये कंटेंट किस तरफ जा रहा होगा. बट व्हाट आई फाउंड आउट दिस कि मैं कंटेंट बना रहा हूँ, कूल इनफ, कंटेंट इज़ अपस्केलिंग मी, फाइन. अब देयर इज 2 things. मैं कंटेंट बना रहा हूँ, अच्छी चीज़ है, बट आई हैव अ लिवलीहुड टू मैनेज. So would I be able to manage my livelihood with the content? This question comes, and this is a question which critiques कुछ भी बोले, पर ये वाला question थोड़ा genuine हो जाता है. तो मैंने जिस तरीके से manage करा, what I did was कि ठीक है यार, मैं एडिटिंग जान गया हूँ, मेरे पास ऑनलाइन प्रेजेंस है, मैं रीच आउट कर सकता हूँ लोगों को.
I can present myself, I have communication skills, let's just leverage this, है ना. तो on the basis of all those things, I started freelancing, I started into editing services और बाकी चीज़ों में. तो उधर से एक टैप इन हुआ और फिर जब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे एग्जीक्यूट होने लगी, देन आई थॉट कि ओके, आई वाज नॉट डूइंग रॉन्ग, बहुत अच्छा करा था, कंटेंट बना लिया. और मतलब बहुत, दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील अबाउट माय कंटेंट, कि क्योंकि जब मैंने शुरू में बनाया था द क्वालिटी वाज सो गुड, और अब जब मैं बनाता हूँ तो अब तो क्वालिटी मुझे ठीक लगती है कि मैं जब और बनाऊँगा तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि वो जो क्वालिटी मैंने तब प्रोड्यूस कर ली, अब आई कैन मेक थ्रू इट. सो द सेम थिंग इज विद यू कि तुमने कंटेंट बनाया, इट्स नॉट जस्ट कि वो कंटेंट बनाया है, वो डला है. The things you have gained, the connections you have gained, the skills you have gained, you are always able to present. Any media house at this point, any company at this point wants a personal person या फिर एक बंदा कंपनी के लिए. So this is like a new field which is not much talked about, not much realized about, and I really think this is also one thing. मैं ना नॉर्थ कैंपस में कई लोगों को इंस्टा पे फॉलो करता हूँ, या फिर और भी कई लोग जो मेरे बाकी फ्रेंड्स हैं, some are placed into companies, they create content, and sometimes I ask why are they creating content. The only reason is everyone who is even settled in their field also knows content has so much to give, and why must I not tap into that? Yeah, true. तो maybe it's a differentiator for those जिनको लग रहा है कि यार कंटेंट तो ऐसे ही है. मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपने अभी टैप इन नहीं करा है, या फिर आपको अभी रियलाइज़ नहीं हुआ है. वरना एक चीज़ तो मैं बहुत क्लियरली समझ गया हूँ, इवन जब मेरे कॉलेजेस में भी थर्ड ईयर में जितने भी बच्चे हैं, इवन ऑल दोज नो मी, भले ही मेरी उनसे बात होती है, एंड दिस अ वेरी जेन्युइन give and take of respect. I respect them, and because generously I treat everyone, and they also treat me ठीक है, he's doing good, he's doing fine. तो उन लोगों को भी पता होता है कि इस चीज़ का एक्चुअली बेनिफिट है, एंड इट्स गुड टू क्रिएट. बट तो मुझे बस वही लगता है कि अगर आप नहीं समझ रहे हो, देन इट्स समथिंग ऑन यू अपार्ट फ्रॉम द एक जो चीज़ मैंने बोली जेन्युइन है कि भाई तुम कंटेंट बना रहे हो, साथ में बस अपना लिवलीहुड देख लेना, बस वो एक चीज़ मुझे जेन्युइन लगती है. अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स जस्ट POV, 1000 POVs, 1000 ads, लेट्स जस्ट लिसन, वही वाली चीज़ है. ठीक है, moving further, you just talk about this. Tell me some of your favorite creators, like let's just mention the categories and then we'll go. एक दो creators के नाम लो into the DU circle. Some of your good creators will be like कि ये अच्छा बनाता है यार. In DU circle. हाँ, दो तीन creators. Okay, so I'll be very biased. So sorry. It's all CR from like SRCC. अच्छा. Okay, the first one would be Jitin Kumar again, because he is a very down to earth personality. Yeah, he's indeed. He like, you might be like कि भाई बड़े influencer reply नहीं करते, but he is the one, he will reply you. यार, he replies on the stories too. Yeah, he's actually generous. Like बहुत लोग फॉलो बैक नहीं देते, आप उनको फॉलो करो, फॉलो बैक दे देंगे यार, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है. एंड आई गॉट टू नो ही इज़ वेरी फ्रैंक, ही गिव एडवाइसेस इन वॉइस नोट्स ऑन Instagram DM. आई एम लाइक दिस इशू हो गया है यार. मुझे ना जितिन की स्टोरी भी बहुत अच्छी लगती है. एग्जैक्टली, द टेक्स्ट, दैट इज नॉट ओनली क्रिएटर. ऐसी ऑब्वियसली इंस्टाग्राम स्टोरीज तो हैं ही, बट वो जो पूरी स्टोरी है जितिन की, मतलब कैसे ही वेंट टू SRCC, उसके बाद कैसे उसने SRCC में आगे बढ़ा, राइट नाउ KPMG. उनकी पोस्ट के जो वो होते हैं ना कैप्शन, सबके आपको ChatGPT के मिल जाएंगे, उनके नहीं मिलेंगे. दैट इज़ वेरी इंग्लिश, कि हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पूरा इमोशंस एक्सप्रेस हो जाते हैं. जितिन भाई प्लीज आ जाओ. भाई जितिन को लगता होगा ये हर पॉडकास्ट में जानबूझ के करा. नहीं, यू नो मी वेरी वेल कि भाई यू आर माई फेवरेट क्रिएटर. सो ओके, जब उनको KPMG मिला, ही डिड नॉट टोल्ड इन स्टोरी, उन्होंने पहले मुझे व्हाट्सएप में बता दी, देख मैं यहाँ बैठा हूँ. Okay, so next moving ahead, that will be Ujjwal Sharma. Okay. Again, he's from SRCC, if you know. So why he? Because when I was in class 12, there was no content creator on CUET, and he was the one giving guidance. So at that particular point of time, he was into Paytm, and right now he's in Deloitte. Okay. Ujjwal Sharma. And the third one, I think that is a very obvious guess, Ananya Gupta, Ananya Talks. And again, she was the creator when I was in 12. So I have seen their content when I was in school. So I like them, कि भाई I want to enjoy life like them. They are managing college, they are managing content creation, they are doing everything which I want. So these are the three creators. Cool. Apart from the DU circle, ऐसी कोई general theme? Okay. Overall, Aman Dhatrawal, very inspiring.
Number 2, Akash Majumdar. You know him? I know him. I'm actually into his उसका Nagpur. cohort जो हुआ था, Okay. cohort 3.0. हाँ. I am his part. I joined his cohort, है ना. TCC में there is this guy called Shashwat. He's one of my friend. He's actually teaching in his cohort, है ना. Okay. So I know Akash a lot and मतलब there is one video of mine, execution करके एक है मेरे चैनल पे. That was the first video I created getting inspired from him and I know him from since like जब उसकी पहली वीडियो फटी थी तो आकाश इज लाइक वन ऑफ माय फेवरेट क्रिएटर्स टू. Okay. है ना. बल्कि आई ट्राई टू क्रिएट लाइक हिज कंटेंट. आई रियली लाइक हिम दैट मच. I like his storytelling skill. एक्चुअली इज Amazing. अभी तो आकाश भाई क्रिकेट पर आ चुके हैं. And he was into Delhi last हाँ, month. I was messaging him कि भाई meetup करा लो. I'll be the one. बल्कि देयर इज दिस गाय कॉल्ड, मतलब आई नो आकाश थोड़ा सा क्योंकि मेरे बहुत सारे कनेक्शंस हैं. दे नो हिम वेरी पर्सनली. आई हैव नेवर मेट हिम बट या आकाश इज लाइक. एंड The third one would be Tharun Speaks. तरुण Yeah, and George. Like they are all from science stream and I'm from commerce stream. So it was always like they are in science stream, still they are making content, and I'm from commerce stream. I love and make content. So I want to hit that cool field. ठीक है. We are almost about to wrap up, but some final and important questions. What would your advice to any first year who is joining college in general and now is coming to Delhi, joining here? Obviously, he can be in DU, he or she can be in DU, but even in other colleges, what's your advice for a first year undergrad? Okay. So the first and foremost would be prioritize your course over your college because at the end every Delhi University का college is same. क्राउड इज़ जस्ट डिफरेंट. बाकी आपको 3 साल तक अपने कोर्स के साथ रहना है. ठीक है. कॉलेज आप सारे कॉलेजेस जा सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. आप कॉम्पिटिशन्स में चले जाओगे, आप नेटवर्क्स बना लोगे. ठीक है. देयर आर सम, अगर आपको चाहिए कि कैंपस लाइफ में कोई इन्जॉय करनी है तो देयर आर 1 year कोर्सेज ऑफ लैंग्वेज कोर्सेज, आप वो ज्वाइन कर लो ड्यू आने के बाद. तो इसलिए प्रायोरिटाइज योर कोर्स एज ऑफ नाउ. ठीक है. स्टार्ट स्टडिंग. ऑफ कोर्स आपका फर्स्ट ईयर में यू विल इन्जॉय मच. सेकेंड ईयर में अपना CGPA में ध्यान दे दो. तो इट शुड बी फर्स्ट ईयर एन्जॉय, गो टू college fest, enjoy college life, make friends, talk to strangers, do everything, document everything. Second year, be serious, at least do one internship. That was like मेरा mindset. मैंने second year में आके एक internship की 3 months offline गुड़गांव. तो offline internship करो and और CGPA पे फिर ध्यान दे दो. And third year when comes, be serious about your आगे का life कि आपको competitive exams में जाना है, आपको placements लेनी है. What is that stuff? और पोस्ट समवेयर, बी इट एनीवेयर. लिंक्डइन में पोस्ट करो. लाइक अगर आप मेरे को बोलोगे वन रिग्रेट, सो दैट विल बी नॉट. कल सर्च करा, मैंने कहा ठीक है. एक कनेक्शन और मैं कहा यार यही होगा, फिर से बनाया नहीं लिंक्डइन. हाँ, सो आई डिडंट फॉर यू लाइक आई opened my LinkedIn in my second year of college and I did not post anything. तो yeah, start creating on LinkedIn because मेरा था कि like I'm active on YouTube and Instagram, why to create on LinkedIn? But now I realize नहीं, LinkedIn may be important because I have content to post. I am into events, तो मैं post कर सकता था, but I did not do so. And again, be very cautious when you are coming to Delhi क्योंकि Delhi people are extremely very smart. I was picked many times in Delhi. ठीक है. लाइक दिल्ली में मैं एंटर किया, एक बच्चा आया वेरी नीडी, लाइक मेरी वो जाग गई कि भाई हेल्प करना है. मैंने फ़ोन बस देने ही वाला था. आई रियलाइज कि आई एम इन दिल्ली, आई शुड नॉट गिव फ़ोन. ठीक है. पॉलिटिक्स में मत घुसो यार, मेरा रिकमेंडेशन. इफ़ योर इंटरेस्ट इज़, इफ योर बैकग्राउंड इज इनटू पॉलिटिक्स, डू जॉइन पॉलिटिक्स. दिल्ली यूनिवर्सिटी डूसू का आपको पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर देगा. बट इफ़ यू आर नॉट इनटू इट, दैट इज़ नॉट द राइट प्लेस फॉर यू. ठीक है. ज़्यादा लड़ाई झगड़े मत करो अपने सीनियर्स से, जूनियर्स से. अच्छे कनेक्शंस बना के रखो क्योंकि एट द वेरी एंड योर जूनियर्स, योर बैचमेट्स, योर सीनियर्स आर द वंस जिनके साथ आप अपना कॉलेज के बाद भी कनेक्टेड रहोगे. लाइक स्कूल लाइफ में जैसा होता है सेम फेज कॉलेज लाइफ में भी होता है. यू विल बी इन टच विद दोज पीपल. सो या cool. Okay, one of the very I think you would like this question, but any feedback for Abhinav who is just coming out of, like वो ट्रेन में भी ट्रैवल कर रहा है, बस दिल्ली आने ही वाला है. He's like, would you like to say something to him? Would you like to tell him कि भाई बस ये कर लियो थोड़ा बहुत, बाकी enjoy your time, you'll have good time है क्या?
Okay, so time management was the thing कि यार I was not able to manage time. और अगर if you're talking about कि अभिनव जो ट्रेन में है उसको एडवाइस करना है तो it will be like what would you say to him, like 2-3 line में? okay. So Abhinav, the first and foremost thing is you took a very big decision, very great decision to come into Delhi, and I advise this to every single person. Please come to Delhi. You have great exposure and opportunity. Second thing, you have invested a lot of your time into stuff which were not necessary. I'll say societies. You could have done 2 to 3 extra internships in terms of not giving time to societies. It might have helped in your resume, but you did not do so. And third advice would be stop trusting people, and it's not necessary you have a group of 10 friends. You can have 1 or 2 friends, and those should be honest, those should support you, and that's all. ठीक है, and there's this very classic favorite question of mine which I used to ask in every Conversify podcast, and I'm finally asking it again. कि on a very random day, Abhinav, if you get a chance to choose between tea and coffee, what would you choose? You'll get the majority answer, the obvious answer, tea. I think he is a coffee lover because हम कॉफ़ी को जताएंगे. he feels like जब भी कोई टी बोलता है इसका मुंह बन जाता है. नहीं, बट ठीक है, अब हम एक लिंक YouTube की कम डालेंगे. बट ठीक है, दिस वाज इट. I enjoyed with you, Abhinav. Thank you. Seeing on the camera, how was your experience? Okay. So first of all, I'd like to appreciate the initiative which you have taken, because the initiative is all about interviewing the Delhi University के creators, or not just Delhi University, the college creators, be it AIMS, Delhi, IIT Delhi, Triple IT Delhi. So it is a very great initiative. Why? Because this gives the audience and the newcomers, the juniors, a first-hand experience of what's happening here into our lives. Because there are very few creators. ठीक है, you will find हमको बहुत सारे creators दिखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बट आप जब घर बैठ के सर्च करोगे तो आपको बहुत कम लोग दिखेंगे. और पॉडकास्ट आ रहा वे कि आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा क्या प्रोज है, क्या कौन से, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है. सो दैट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव विच यू हैव टेकन कि, एंड वेरी ग्रेटफुल दैट यू डिस्कवर्ड मी. आई एम हियर, एंड फर्स्ट पॉडकास्ट था मेरा, काफ़ी स्टार्टिंग में नर्वस था, and now you have inspired me to create podcast and stuff. Now you will see, like next year most probably I'll be interviewing you. अरे नहीं भाई, नहीं. Till then, like interview more and more people. बिल्कुल cool. We are into this. Yeah. ठीक है, this was it. I hope you liked it. If you are new, if you are someone who is writing CVT, if you are someone who is into college life, if you are someone randomly who just landed because of his page or my page, stay around. If you are anywhere around DU, and if you are coming DU, he's like go-to senior. This is it, Conversify episode 12. See you that side. Me, Abhi, signing off. Bye guys. Bye bye.